चलिए, बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सब लोग वहाँ उपस्थित हैं और सब लोगों ने मिलकर के शिलापट्ट का अनावरण किया है और बहुत ही सुंदर ढंग से अनावरण किया है। पर्दा हटाने के क्रम में पर्दा के डंडा को भी हटा दिया आप लोगों ने। बहुत और देवेश चंद्र ठाकुर जी का उसमें अच्छा योगदान रहा होगा। तो मुजफ्फरपुर नगर वासियों के लिए ये पुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को और आपके माध्यम से मुजफ्फरपुर के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आज के दिन सिर्फ मुजफ्फरपुर के रेल ऊपरी पुल का ही उद्घाटन नहीं हो रहा है, बल्कि एक ही साथ बिहार भर में 312 पुलों का उद्घाटन हुआ है। और इसके साथ साथ कोसी नदी के डुमरी घाट पर जो पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, उसको एक स्टील पाइल पुल बनाकर चालू किया जा रहा है आज। तो एक साथ कई काम हो रहे हैं। तो आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ। मेरी बात पूरी हो चुकी है। आप लोग कुछ कहना चाहते हो तो कह डालिए। सर, मुजफ्फरपुर की जनता बहुत खुश है और आपको पूरा धन्यवाद दे रही है। आप ही खुश है तो मुजफ्फरपुर की जनता तो खुश ही गई। ये दृश्य था मुजफ्फरपुर के मोती झील में रेल ऊपरी पुल के उद्घाटन समारोह का। एक घनी आबादी में for his initiative of bridging the gap, the turnaround of Rajapul Nirman Nigam, a success story. This journey started in 2005 with 8 bridges and a turnover of 57.38 crores. The journey has been long, arduous and challenging. The challenges being overcome with consummate ease. The animated graph would do any organization proud, the figures reflecting healthy trends. The impact of so many bridges is to be seen, to be believed. It has touched the lives of people. People become passionate talking about the impact of the bridges. अब तो बच्चा लोग सीधे चलता, गार्जियन को भी भय था कि भाई पुल से नाव से उतरेगा तो डूबे डाबे बच्चा को दिक्कत होगा। वो सब बात अब नहीं है। बच्चा निकला सीधे अपना रोड पकड़ के स्कूल चला गया। फायदा है कि बैलगाड़ी भी जाता है, मालजाल भी जाता है, आदमी भी सीधे सीधे चले जाता है। और फायदा है कि अगर बॉन बाजार में कोई फसल लगा हुआ है तो गाड़ी ठेला से मोटर से जैसे हो जैसे ले आता है। There has been development of the whole area in all aspects of life, whether that be education, health, law and order, economic prosperity. लोग 7 बजे दुकान बंद कर देता है लोग। अब 10 बजे तक 11 बजे तक अपना कमाते हैं लोग। जब मन करता है तब घर पर आते हैं। तो फायदा तो बहुत है। ये बोरा 10 को 20 हो गया। पुल बनने से 10 के 20 हो गया। उसमें पैसा भी कमाई होता है। An old adage that great men
don't do different things but do things differently has been turned on its head by Pul Nigam. Pul Nigam has diversified its operation into building construction like medical colleges at Pawapuri, Madhepura and Betia, convention center at Rajgir, flood shelter and Karpuri Chhatravas at several locations in the state. Pul Nigam has been organizing events like IITF at Delhi, Saras Mela, ING IABAC conference at Patna for the last few years. Different steps have been initiated to enhance the capacity of the employees, motivational talks, training. It is also contributing to the beautification of Patna by constructing several parks. A healthy Patna, no less, is the beautification of different roundabouts. So, Pul Nigam does different things for its success. It's cliched and reflects the resolve of its employees to excel. Corporate social responsibility, giving back to the society from its corpus. Pul Nigam has contributed generously to the CM's Relief Fund every year. The latest in line is the sheet pile bridge at Dumri, Khagaria. This is proving to be the lifeline for the area, this being constructed from Pul Nigam's CSR fund. An aspect that touches one's lives is the adoption of 10 children from Nishan Balkare. Pul Nigam is ISO 14001 certified for its concern for environment. This is being carried forward by its new resolution to plant trees on all its construction. Pul Nigam is not about building bridges, but building bridges of confidence. So, this was the film that Mantri, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, सचिव पथ निर्माण विभाग, अध्यक्ष निगम और प्रबंध निदेशक आप सभी से आग्रह करते हैं थैंक यू सर, थैंक यू। आज निगम एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ही जनरसली सीएम रिलीफ फंड में हम एक आर्थिक डिविडेंड लाभांश श्री बी के सिंह, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, थैंक यू। श्री घनश्याम मंडल, प्रोजेक्ट इंजीनियर, श्री विमल चंद्र प्रसाद, कनीय अभियंता, मोहम्मद एजाज अहमद, लेखा लिपिक और श्री अर्जुन पंडित आदेश पाल, आप कृपया मंच पर आए। धन्यवाद सर। आज पुल निर्माण निगम के स्थापना दिवस के समारोह पर और जब मुख्यमंत्री जी विभिन्न प्रकार के दौरों में जब और शेष पुलों के निर्माण के काम पर अभी हमारा काम उस पर जारी है। ये ठीक है कि वो सारे पुल निर्माण निगम के माध्यम से नहीं बन रहे हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे पुल हैं वो हम जिला की एजेंसी के माध्यम से उसको बनाने का काम करते हैं या फिर विभिन्न एजेंसी से बनवाते हैं। पूरा कि हर जगह जाकर उसका उद्घाटन करना संभव नहीं हो पा रहा, इसलिए पुल निर्माण निगम थोक भाव से पुलों का उद्घाटन करवाता है।
ये भी एक अद्भुत कार्य है। अब कोई सोचता भी नहीं था, यहाँ पर तो एक पुल दो पुल के लिए लोग तरसते रहते हैं, तरसते रहते थे, अब तरसते नहीं। अब तो नजदीक नजदीक में पुल बनाने की इच्छा लोगों की पैदा हो गई। पहले तो हम लोग कहीं जाते थे तो लोग एक आध दो पुल की मांग करते थे किसी इलाके में कि बन जाए तो पूरे इलाके को बड़ी भारी सुविधा हो, और तो पुल बनता जा रहा है और उसी तरह से मांग भी पैदा होती जा रही है। तो ये तो चलता रहे, तो दुनिया का दस्तूर है। जब काम नहीं होता है तो इक्का दुक्का मांग रहती है, और जब काम होने लगता है तो मांग भी बढ़ने लगती है। लेकिन बिहार में पुलों की जरूरत है, काफी नदियां हैं और यहाँ पर पुल की आवश्यकता है। और अगर सड़क बाद में भी बने, पुल अगर बना दिया जाए तो आवागमन में बहुत सहूलियत होती है। तो जब हम लोगों की सरकार बनी 2005 में, तो हम लोगों के सामने चुनौती थी और हम लोगों के समक्ष ये प्रश्न था कि आखिर हम कैसे करें इस काम। पुल निर्माण निगम को बंद करने का निर्णय किया जा चुका है। तब हम लोगों ने उस निर्णय पर पुनर्विचार किया और पुल निर्माण निगम को पुनर्जीवित करने का फैसला किया, और आज पुल निर्माण निगम अपने पूरे यौवन पर है। अब तो लोग देख रहे हैं, अब पुरस्कार मिलने लगे। तो बिहार की यात्रा की कहानी अगर सुननी हो कि कहां से कहां हम पहुंचे हैं, तो सांकेतिक तौर पर अगर पुल निर्माण निगम की कहानी जान लीजिए तो पता चलेगा कि बिहार किस तरह से प्रगति के रास्ते पर चल पड़ा है। यह एक उदाहरण बना, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। और आज इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और अभी काम बहुत करना पड़ेगा, जितना काम करेंगे उससे ज्यादा काम जनरेट हो जाए, ये मान कर चलिए। और दरअसल काम की जरूरत है बिहार, और अब तो एक बड़ी मुझे प्रसन्नता हुई एक इसी प्रकार के कार्यक्रम में, जब पहली बार हम लोगों ने ये जानकारी लोगों को दी थी कि बिहार में तो अब बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लोग आगे आ रहे हैं, और बख्तियारपुर और ताजपुर के बीच गंगा नदी पर 1600 करोड़ रुपए की लागत से एक नए पुल के निर्माण कार्य का शुभारंभ हो गया। तो अब तो सिर्फ सरकार का ही निवेश नहीं है, बिहार का वातावरण इस प्रकार का हो गया है कि अब निजी क्षेत्र के लोग भी बुनियादी ढांचा से जुड़ी परियोजनाओं में भागीदार बन गए। ये एक बदलते माहौल का परिचय है। हमको मालूम है कि कोई भी निजी क्षेत्र का व्यक्ति या निजी क्षेत्र की संस्था, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तभी आएगा, पैसा लगाएगा जब उसको मुनाफा हो, इसमें कोई शक नहीं। और वो अपने काम को फैलाने के लिए अनेक जगहों पर नए काम हाथ में लेगा। लेकिन ये काम तो पहले से भी हो रहा था बिहार देश में, लेकिन बिहार उससे अछूता था। बिहार के बारे में लोग सोचते थे कि बिहार में कुछ हो ही नहीं सकता। तब ये बदलते बिहार की निशानी है कि पुल निर्माण निगम पुरस्कृत हो रहा है। जन निजी भागीदारी में निजी क्षेत्र के लोग आगे आ रहे हैं, और कोई थोड़ा बहुत नहीं, 1600 करोड़ में 900 करोड़ रुपया निजी क्षेत्र के लोग लगा रहे हैं। तो अब इसी तरह से काम आगे बढ़ेगा। अब पुल निर्माण निगम के पास इतना काम हो गया, अब पुल निर्माण निगम तो काम करने लगा। अब चारों तरफ से लोग कहते हैं कि पुल निर्माण निगम को ही काम किया। तो पुल निर्माण निगम को पुल बनाने के लिए बनाया गया है। ये ठीक है कि कुछ और काम भी पुल निर्माण निगम सफलतापूर्वक कर लेता है, लेकिन हमें पुल ही इतने बनाने हैं, तो अब सड़क बनाने के लिए एक और कॉरपोरेशन बनाना पड़ रहा है। तो अब काम बहुत बढ़ गया और नई संस्थाएं भी
गठित करनी पड़ रही, स्थापित करनी पड़ रही। तो अब इसी तरह से काम बढ़ेगा। अब तो सड़कों का जाल बिछना है, हमें ग्रामीण सड़कों पर भी उतना ही ध्यान देना है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी सड़कों को बनाने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्र में जब एनडीए की सरकार थी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, तब उसकी कल्पना की गई और उस पर काम प्रारंभ हुआ। जब हम लोगों की सरकार यहाँ पर बनी तो हम लोगों ने 500 से 1000 की आबादी के बीच के गांवों को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सड़क परियोजना की शुरुआत की, पुलों के लिए मुख्यमंत्री सेतु योजना की शुरुआत की, ये सब काम किया। अब तो उसके आगे जाकर जो हमारे देहाती इलाके की सड़कें बच गई हैं, उनको हाथ में लेने के लिए हम एक नई परियोजना बनाने जा रहे हैं और उसके लिए सर्वेक्षण आदि का काम चल रहा है कि कहीं कोई छूट न जाए। कुछ सड़कों के क्षेत्र में, संपर्क के क्षेत्र में तो हम बहुत आगे जाना चाहते हैं और इस क्षेत्र में जो हम सदैव मीटिंग में इस बात को कहा करते हैं, जनसभाओं में भी कहा करते हैं कि हम लोगों का लक्ष्य है कि पटना राजधानी है और बिहार के सबसे दूर दराज के गांव को भी अपने गांव से चलकर पटना आने में 6 घंटा से कम समय लगे। इतना हम सड़क बनाना चाहते हैं और इतना पुल बनाना चाहते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। तो जब लक्ष्य इतना बड़ा है तो स्वाभाविक है कि काम की कभी कमी नहीं होने वाली। तो मैं आपको आज के इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपको बधाई देता हूं। और अब जिस संस्था को बंद किया जा रहा था, अब वो लाभांश दे रहा है, मैंने मुनाफा कमा रहा है और सरकार ने जो हिस्सा पूंजी लगाई अब उसमें पैसा मिल रहा है। समय के लोगों को और पूंजी लगा देना चाहिए था, बहुत कम पूंजी लगाए, तो जितनी पूंजी लगी है उसी के हिसाब से लाभांश मिलेगा। लेकिन मुझे खुशी है कि बिहार के जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए, आपदा पीड़ितों की मदद करने के लिए, गरीब लोगों को इलाज में मदद करने के लिए, गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद करने के लिए, जो लोग संकट से घिर जाते हैं उन सब लोगों की सहायता करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष गठित है। उस मुख्यमंत्री राहत कोष में भी पुल निर्माण निगम और हमारे सरकार के अन्य निगम और संस्थाएं उदारतापूर्वक उसमें दान दे रही हैं। तो अब ये स्थिति आई है, भाई निजी क्षेत्र के लोगों को भी दान देना चाहिए, उसमें मदद करनी चाहिए। लेकिन अब तो यहाँ इंतजाम ऐसा हो गया कि हमारी संस्थाएं इतना चलने लगी कि अब वो भी दान देने की स्थिति में आ गई। तो वो अब डोनेशंस देते हैं और उससे राहत कोष का संचालन होता है। तो काम आगे बढ़ा तो इस तरह के अनेक फायदे हैं और आपका काम इसी तरह से बढ़ता जाए। मैं एक ही बात कहूँगा कि किसी भी स्थिति में काम कितना भी ज़्यादा हो, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होता। और दरअसल आपका नाम चिरस्थायी तभी होगा, काम तो अभी कर रहे हैं तो खूब नाम हो रहा, लेकिन काम अच्छा है और बहुत अच्छी क्वालिटी का काम है, ये साबित हो जाएगा जब आप स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, पुल जो बनाते हैं, वो टिकाऊ होगा अगर आप गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी भी मामले में गुणवत्ता के साथ समझौता आप नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, और तब जो आपका काम है वो सदैव आपकी कहानी कहता रहेगा और इस संस्था से जुड़े हुए जितने लोग हैं उसमें गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को फिर से शुभकामनाएं। आप खूब तरक्की करें और आप तरक्की करेंगे, इसका मतलब है राज्य तरक्की कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।